हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज हम बात करेंगे क्लास 9th के कुछ रिक्वेस्टेड क्वेश्चंस के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट आउट विद फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच सेज, ये एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हिच सेज व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स, what can be the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expression of 1 by 17। यानी 1 by 17 को अगर हम डेसिमल फॉर्म में लिखें तो जो नंबर रिपीट हो रहे हैं उस ब्लॉक में कितने डिजिट्स आएंगे। तो आपको गैस करना है। यू कैन से 2, 5, 7, 20, 25, whatever is your guess। उसके बाद ये कह रहा है परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर, मींस यू हैव टू परफॉर्म दिस डिवीजन एंड देन यू हैव टू राइट डाउन कि हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन द रिपीटिंग ब्लॉक, यानी जो डिजिट कब से रिपीट होना शुरू होंगे, एक बार पूरे नंबर फिर दोबारा से वही सेम नंबर, तो कितने ऐसे डिजिट्स हैं कि वो रिपीट ना हो। सो लेट्स चेक बाय डूइंग द डिवीजन। यू हैव टू डिवाइड 1 by 17। Now it's not going 0. Now we'll put a decimal. After decimal you can put any number of zeros। तो हमने पहला लगाया। 10 is also not divisible by 17, so it will come 0 here। One more 0. It will go on 5, 85। One more 0. It will go on 8, 8 sevens are 56, 8 और 5 136। One more 0, it will go again on 8, 136, that is 4। कई बार स्टूडेंट कहते हैं सर 8 के बाद 8 रिपीट हो गया है। नो, दैट इज नॉट द रिपीटिशन। आपको रिपीटिशन का मतलब है वो पूरा ब्लॉक एज इट इज आ जाए। यानी जैसे यार 0, 5, 8 आया तो 0, 5, 8, या अगर 8 आ रहा तो लगातार अब 8 आना शुरू हो जाए। अब आपके पास 4 आया है, 8 नहीं आएगा दोबारा से 40, 2s are 6, 3s are 51। One more 0, it's 51। 98 will go on 4, 5, 5, that is 85। So I'll write down it here 5, 0, 50। So 2s are again one more 0। It will go on 9, that's 7। One more 0, 68। It will go again on 1, again on 1, one more 0, 130। It will go on 7, 11, 110। It will go on 6, minus this will come as 8, means 80। Again it will go on 5, 4, 68। Again 0, 9s are no, it will go on 7। Again we have come again as 1,
जहां से स्टार्ट किया था हम वापस वहीं पहुंच गए हैं, इट मींस इससे आगे रिपीटिशन स्टार्ट हो जाएगी. सो 1/17 कैन बी रिटन एज 0.058823521176447 and there will be a bar on it. So now you can count the number of digits 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 and 16. So your answer number of digits in repeating block are 16. 16 digits हैं. जब इसको आप डिवाइड करते हैं तो 16 डिजिट्स के बाद सेम 16 डिजिट्स विल कम, फिर दोबारा से वही सेम 16 डिजिट्स आएंगे. सो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, this is question 4 from your worksheet. They are asking if x raised to the power 21 minus 20 is divided by x plus 1. Find the remainder. अगर आप कई स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं इज डिवाइडेड मींस वी हैव टू डू दी लॉन्ग डिवीजन, हमें लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करनी पड़ेगी. बट याद रखिए व्हेन somebody is asking only about the remainder, we can use the remainder theorem for this. How we will use? Put x plus 1 is equal to 0, so x is minus 1. Put the value of x as minus 1 in this. So p of minus 1. So you can give it as the name polynomial in x. P of minus 1 is equal to minus 1 raised to the power 21 minus 20. This is odd number. As we all know, if minus 1 power is any even number, then it is plus 1, and if it is odd number, then it is minus 1. So it is minus 1 minus 20 and your answer is there. Always remember, if they are just asking about the remainder, then you have to use the remainder theorem. और अगर आपसे पूछते हैं find out the quotient as well as the remainder, then you have to perform the long division. So let's move to the next question. Okay, next question says if the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, express this in the form of an equation in two variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 units. Also read from the graph, यानी इसके बाद जो करना है वो ग्राफ से करना है, the work done when the distance traveled by the body is 2 units or 0 units. अब इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम क्वेश्चन नहीं है, प्रॉब्लम इस स्टेटमेंट है. बहुत बड़ी होने की वजह से थोड़ी सी डिफिकल्ट लगने लग जाती है. सो नाउ विल ब्रेक इट इन पार्ट्स एंड विल अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट, और आपको बहुत आसान लगेगा ये क्वेश्चन. तो देखिए यहां से पकड़ते हैं. इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी. मैंने ये टुकड़े कर दिए इसके. वर्क डन, अब यहां से मैं उठा रहा हूं वर्क डन बाय अ बॉडी. वर्क डन आई एम राइटिंग इट इन द वर्ड फॉर्म ओनली, बाद में इसको हम मैथमेटिकल टर्म्स में करेंगे. वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. नो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, सॉरी ये ओपन रहेगा, ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड. डिस्टेंस ट्रेवल्ड. अब ये मुश्किल थोड़ा सा हमें क्यों लगता है? वैसे तो हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन मैथमेटिक्स में स्टडी कर चुके हैं, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये जो वर्ड्स हैं ये तकरीबन हमारे पास फिजिक्स में आते हैं,
और फिजिक्स में भी बहुत कम अभी तक यूज किया है, इसलिए थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्लास 9 में। व्हेन यू विल गो इन द हायर क्लासेस, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला फिजिक्स में बहुत यूज होने वाला है आपके पास, और मैथमेटिक्स में तो चलो यूज होता ही होता है। सो वर्क डन, अब उन्होंने कहा है इसके बाद एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब हमारे पास दो चीजें हैं, इन्हीं को हम दो वेरिएबल्स के तौर पे ले लेते हैं। लेट वर्क डन इज इक्वल टू एक्स एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड is equal to y. Now we'll put it x is directly proportional to y. और जब भी ये proportional का साइन हटा करके हम इक्वलिटी का साइन इसमें जब लेकर के आते हैं तो कोई कांस्टेंट टर्म साथ में जुड़ जाती है, उसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और यहां पे हमें वो बता रखा है, वो कांस्टेंट फोर्स कितना है, 5 यूनिट्स, यानी इस k की जगह पे हमारे पास क्या आएगा, 5। सो हमारे पास ये बन गई इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, x इज इक्वल टू 5y। उसके बाद कहता है ड्रॉ द ग्राफ। अब हम टेबल बनाते हैं, ग्राफ बनाने के लिए हमें टेबल की रिक्वायरमेंट है, और यहां पे एक छोटा सा काम और मस्त कर लेते हैं, क्योंकि हमें मालूम है ये दो चीजें का ग्राफ से हमें रीड आउट करनी पड़ेगी, तो क्यों ना ग्राफ इन दो के साथ बनाया ही जाए। तो ये दो वैल्यूज लेकर के एक अपने पास से कोई और वैल्यू ले लेते हैं। अब ये क्या चीज दे रखी है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमने क्या लिया है, y, तो y को एक बार 2 रख लेते हैं, एक बार 0, एक बार 1 रख लेते हैं, क्योंकि तो एक हमें चाहिए था। अगर y को 0 रखते हैं तो x इज इक्वल टू 5 इंटू 0, यानी x विल ऑल्सो बी 0। अगर y को 2 रखते हैं x विल बी 10, और अगर y को 1 रखते हैं तो x विल बी 5। नाउ आफ्टर दिस विल ड्रॉ द ग्राफ। अब हम यहां पे ग्राफ बनाते हैं, तो ये ग्राफ इसको इरेज कर लेते हैं और ग्राफ बनाते हैं। सो ग्राफ से क्लैरिटी आ जाएगी, और उसके बाद इसको रीड आउट करके दिखा देंगे हम। यहां पर मैं थोड़ा ग्राफ ही बना रहा हूं। ग्राफ ये हमारा हो गया x एक्सिस, ये हो गया हमारा y एक्सिस। अब हमें x जो है वो 10 तक चाहिए, और y जो है वो 2 तक चाहिए। ये हो गया हमारा 0, ये हमने x एक्सिस के ऊपर, क्योंकि 10 तक चाहिए तो थोड़ा 1 2 3 4 5 6 7 थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, 8 9 एंड 10, और y हमें चाहिए था, ये हो गया 1, ये हो गया 2। When y is to x is 10, so ग्राफ के ऊपर ये वैल्यू आ गई आपके पास 10, 2। नेक्स्ट इज x is 0, y is 0, तो दिस इज द पॉइंट 0, 0। x is 5, y is 1, 5 1, it will be here, and after that we'll draw with the help of the scale this graph। And now what they are asking about these two things, we have to read it from graph। अब ग्राफ से तो हमने क्या किया, यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और एक परपेंडिकुलर यहां से, और नेक्स्ट 0 वाला था तो यहां पे कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। सो हाउ यू राइट डाउन द आंसर, डिस्टेंस वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज डिस्टेंस 2 यूनिट्स, वर्क डन कितना आया 2 यूनिट्स पे, 10 यूनिट्स। डिस्टेंस 0 यूनिट्स, सो व्हाट इज द वर्क डन, दैट इज ऑल्सो 0 यूनिट्स। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इन द फिगर, मैंने यहां पर आपके लिए फिगर नहीं बनाया, उसका एक बेसिक रीजन है, बिकॉज मैं आपको ये बता रहा हूं कई बार ये क्वेश्चन विदाउट गिविंग फिगर आ जाए, हाउ यू कैन मेक दी फिगर ऑल्सो। ये इस क्वेश्चन को रीड आउट करके वो भी आपको सिखाने वाले हैं हम। PQ and RS are two mirrors
प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। यहां से दो मिरर्स हैं एंड दे आर पैरेलल टू ईच अदर। सो मिरर है, सो हमने इसके ऊपर ये मार्किंग कर दी सो दैट ये पता चले कि दिस इज द साइड जहां से रिफ्लेक्शन नहीं हो सकती एंड दीज आर दी साइड्स जहां से रिफ्लेक्शन हो सकती है। एंड द नेम ऑफ द मिरर्स आर PQ and RS. Then they say an incident ray AB strikes the mirror PQ at B. एक इंसिडेंट रे इस मिरर को स्ट्राइक करती है। ये लाइन यानी रे की डायरेक्शन बतानी बहुत जरूरी है। बी पॉइंट के ऊपर स्ट्राइक करती है। द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ BC। यहां से ये BC पाथ मूव किया, सो दिस पॉइंट इज C, मूव्स BC एंड स्ट्राइक्स द मिरर RS एट C। RS को C पे मिली एंड अगेन रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग CD, और यहां से CD ये हो गया आपके पास D, वापस रिफ्लेक्ट होकर के चलेगी। प्रूव दैट AB इज पैरेलल टू CD, यानी ये दोनों को आपको पैरेलल शो करना है। अब आपको जो चीज प्रूव करनी होती है पहले उसी चीज को माइंड मेकअप करते हैं। अगर हमें कोई दो लाइंस पैरेलल शो करनी होती हैं, सो वी हैव 3 ways टू डू इट। 3 तरीके हैं। द फर्स्ट वन इज इन दोनों का ऑल्टरनेट एंगल इक्वल दिखा दें या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल दिखा दें या सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री दिखा दें। तो अब हमें डिसाइड करना है कि हम इनमें से क्या करने वाले हैं। दूसरी चीज मिरर्स के बारे में बताया गया है। तो मिरर्स अगर रे स्ट्राइक कर रही है तो हमें इसके अंदर एक और खास चीज मालूम है, दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो उसके लिए क्या करना होता है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहां से और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे आप यहां से। तो इसका नाम दे सकते हैं आप BN और इसका नाम दे सकते हैं आप CN, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर। So this angle is your angle of incidence and this angle is of your angle of reflection. Same here, this angle is, ये हम I1 R1 और इसको बोल देते हैं I2 and R2. Angle of incidence, angle of reflection for this ray, angle of incidence and angle of reflection for this ray. So इसका मतलब ये I1 और R1 इक्वल हैं, I2 और R2 भी आपस में इक्वल है। सो सबसे पहले यू विल राइट डाउन गिवन। फ्रॉम वेयर यू कैन राइट डाउन गिवन? फ्रॉम द क्वेश्चन इटसेल्फ। क्वेश्चन से आप गिवन लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? PQ and RS are two plane mirrors placed parallel to each other. An incident ray AB strikes the mirror PQ at B. The reflected ray BC strikes the mirror RS at C, and again reflected back along CD. Next, to prove AB parallel to CD, ये आपको प्रूव करना था। After that, what you will do? Construction. Draw BN and CM perpendiculars on RS and PQ respectively. So next, proof. अब बात करेंगे प्रूफ की। अब ये एंगल भी 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 डिग्री, तो इसका मतलब जो BN है और वो MC है, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। ये दोनों भी पैरेलल हो गई हैं। और जब अगर कोई दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री होता है। सो सबसे पहले एंगल I1 इज इक्वल टू एंगल R1, एंगल I2 इज इक्वल टू एंगल R2। रीजन? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन द प्लेन मिरर। एंगल ऑफ इंसिडेंस
is equal to angle of reflection. So इसको बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 1. And now BN is parallel to MC. So angle R1 is equal to angle I2 alternate. इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2. अब R1 हो गया है I2 के इक्वल, यानी दिस एंड दिस आर इक्वल टू ईच अदर. ये दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब ये वाला भी तो इक्वल हो गया इसके. और R1 अगर I2 के इक्वल है, R1 I2 के इक्वल है, तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, I1 इज इक्वल टू I2 एंड R1 इज इक्वल टू R2. I1 is equal to I2, R1 is equal to R2. तो इसका मतलब ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल हो गया. सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, एंगल ABC is equal to एंगल BCD इक्वल आ गया. बट दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स, but they are alternate angles, and we know that if alternate angles are equal, then the lines are parallel. So you can write it here, but we know that if alternate angles are equal, lines are parallel. So AB is parallel to CD and hence proved. I hope it is clear to everyone. So now इस वीडियो के अंदर we'll do these 4 questions. नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके अगले और पार्ट्स भी आपको कराएंगे. थैंक यू वेरी मच.